बांग्लादेश में आज हो क्या रहा है? तो ये एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट के जैसे शुरू हुआ, बस ये है कि इस प्रोटेस्ट प्रोसेस के चक्कर में 300 लोगों की हत्या या मौत हो चुकी है इस दौरान। शेख हसीना हैड टू फ्लेड द कंट्री ओवरनाइट और पहले निकल के वो अब भारत आई हैं। डू यू थिंक इसमें यूएस का भी इन्फ्लुएंस है? एवरी कंट्री वांट्स इट्स पर्सनल इंटरेस्ट फर्स्ट, बट पर्सनल इंटरेस्ट एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। वर्किंग विद डॉक्टर कलाम वॉज अगेन अ वेरी स्पेशल मोमेंट इन माई लाइफ. One, he was very approachable. We are seeing something called as the Modi Jaishankar doctrine of diplomacy. Is India ready to be a next superpower? We don't want us to become a superpower. Tech diplomacy क्या होता है? Tech diplomacy is India's number one key point. Is India efficient to see a Indian CEO, a Indian company and a global product? ये समय दूर नहीं है जब एक Indian company and Indian CEO will have a global market. UPI is probably India's greatest technological advantage that we have shipped globally. ज़रूरत है इसे मार्केट करने की. टिम कुक से स्पेशली बिकॉज मैं उन्हें काफ़ी साल से जानता हूँ. पिछले साल हम एप्पल साकेत के इनॉग्रेशन में मैंने उनके साथ इनॉग्रेट किया था, तो आई गॉट टू मीट हिम क्लोजली दैट टाइम. बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट्स बना देने मात्र से दुनिया भर के लोग उसे यूज़ नहीं करेंगे. Siddharth bhaiya, welcome to Ashish Interaction Podcast. Thank you, bhai. It's a pleasure to be on this podcast once again. I'm looking forward to our discussion. You have always been my inspiration and I have seen you supporting me like a big B always. I'm so glad and happy to have you on the show. No, it's a real pleasure, and I'm loving the work you are doing both around Ashish Interaction as well as the Indian Aspirant Show. Yeah. So I think this is one genre जो बहुत untapped था. So it's a wonderful way of inspiring people as well as bringing out real life stories. Yeah, and I'm enjoying it. Yeah, excellent. Yeah. So Siddharth bhaiya, first I want to know कि how is the life going on as a diplomat? India में जब आप diplomat के रूप में काम कर रहे हैं, how do you feel working with the current government? I think right now बहुत ही एक अच्छा समय है to do anything around multilateral diplomacy, around intergovernmental space, around foreign relations, because because of the way the government is, the external affairs is shaping up. A large part of the credit goes to our current external affairs minister Jaishankar Saab. Yes. He has been a driving force in creating what we call as an academic narrative for diplomacy. So I think every minister has brought a separate form of governance. इनके पहले जैसे late Sushma Swaraj madam had a very different perspective. Right. Her idea was making external affairs reach the common man. So उन्होंने पहली बार ऐसा शायद सुनने में आया था that she made it possible for anyone trapped in any part of the world to get in touch with the government of India and in that process get something done for that person in terms of his visa, passport, anything like that. So she made external affairs accessible to the people. Okay. But with Jaishankar Saab, because he is a career diplomat himself, he has been an IFS officer. Later on, he has been the foreign secretary of India. He retired as that. And since being a Rajya Sabha MP, this is his second term as the external affairs minister. So he has come from a educated background in diplomacy. Yes. उन्होंने खुद ने भी अपना PhD न्यूक्लियर डिप्लोमेसी में किया है JNU से. So he brought that academic element कि how to change the narrative of India's foreign policy. So काफ़ी साल तक जो लोग डिप्लोमेसी पढ़े हैं या जो भी इस क्षेत्र में काम किया है, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी में एक शब्द सुनने में आता था एक्ट ईस्ट पॉलिसी या लुक ईस्ट पॉलिसी. इवन जो UPSC एस्पिरेंट्स हैं, ये एक स्पेशल एरिया रहता है जिस पे फोकस करते हैं. बट राइट नाउ वी आर चेंजिंग दैट. ये नैरेटिव को चेंज होने में बहुत समय लगा. देयर वॉज नो फ्रेश one word answer to India's foreign policy. But today we have that. We have something called as, we are being called voice of the global south. Yes. तो ये एक ऐसा नरेटिव है जो इंडिया के साथ लास्ट G20 में जुड़ गया. वसुधैव कुटुंबकम का हमारा जो एंटायर स्लोगन था, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर. आई थिंक वी ब्रॉट एन एलिमेंट ऑफ इंडियननेस एज वेल एज अवर ग्लोबल विजन. ये दोनों को मर्ज करके हमने एक नए फॉरेन पॉलिसी को डायरेक्शन दी है. सो आई थिंक एनीवन हु इज वर्किंग विद द गवर्नमेंट एज अ डिप्लोमेसी एक्सपर्ट एकेडमिकली और इन द इंटर गवर्नमेंटल स्पेस, ये तीन स्तंभ मैं कहता हूँ हमारे डिप्लोमेसी के हैं. इन तीनों के अराउंड ये बहुत अच्छा समय है बिकॉज वी आर सीइंग समथिंग कॉल्ड एज द मोदी जयशंकर डॉक्ट्राइन ऑफ डिप्लोमेसी. लास्ट मैं ऑलमोस्ट एक साल से कह रहा हूँ, इट्स अ
it's a paradigm shift in our diplomatic approach, in our relations with other countries. ठीक है. एक समय था जब हम बायलैटरल रिलेशंस की बात करते थे, बट राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन मल्टीलैटरलिज्म एंड मल्टीपोलैरिटी. तो ये हमारे दो, हम कह सकते हैं, यूएसपी है, मल्टीलैटरल एंड मल्टीपोलर, हमारे अप्रोचेस टुवर्ड्स नॉट जस्ट चेंजिंग बट काइंड ऑफ क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट इन दी वर्ल्ड ऑर्डर, जिसमें हम हमारा आइडिया ऑफ बिकमिंग अ डेवलप्ड नेशन इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ आवर न्यूक्लियर आर्सेनल और ऑन द बेसिस ऑफ आवर मिलिट्री स्ट्रेंथ. इट इज अबाउट अपलिफ्टिंग द स्मॉलर नेशंस जिनके जो कि डिप्राइव्ड हैं, लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ फाइनेंसेस, लैक ऑफ एजुकेशन, इन सब के कारण. सो वी आर काइंड ऑफ हेल्पिंग द ग्लोबल साउथ grow along with our development journey. You said कि India is now focusing on multilateral diplomacy और multipolarity. Yeah. इन दोनों कॉन्सेप्ट को एक बार समझा दीजिए और क्यों ये इतने इंपॉर्टेंट है. राइट. सो मल्टीलैटरलिज्म जब हम कहते हैं, सो बायलैटरल का मतलब दो देशों के बीच संवाद था, दो देशों के बीच रिश्ते को कहते थे. सो मल्टीलैटरलिज्म का ज़माना इसलिए है, हम एक सिंगल देश के अराउंड हमारे डायलॉग को केंद्रित नहीं रख सकते. जैसे कि ये फोरम्स G20, G8, टुगेदर लॉट ऑफ कंट्रीज आर कमिंग टुगेदर टू डिस्कस कॉमन इश्यूज, कॉमन ग्लोबल प्रॉब्लम्स. फॉर इंस्टेंस क्लाइमेट चेंज. Just two countries discussing amongst themselves won't solve the problem. जैसे कुछ 60, 70, 40, 30 साल पहले हो रहा था, सिर्फ दो कंट्रीज मेजर पावर्स बन रहे थे, इनके बीच स्पेस वॉर्स भी हुए, इनके बीच न्यूक्लियर आर्म्स रेस भी हुआ, यूएसए एंड यूएसएसआर. अब वो ज़माना नहीं है. सो मल्टीलैटरलिज्म मीन्स व्हेन वी टॉक ऑफ एशियन कंट्रीज, सो द एशियन ग्रुप हैज़ टू कम टुगेदर एज अ होल. व्हेन वी टॉक ऑफ सार्क कंट्रीज, द एंटायर सार्क फोरम हैज़ टू कम. तो जहाँ पे भी हम आज विकास की बात कर रहे हैं, इट इज़ नॉट अबाउट वन कंट्री और जस्ट टू कंट्रीज डोमिनेटिंग द कॉन्वर्सेशन, इट इज़ अबाउट अ फोरम. तो ये जो फोरम अप्रोच टुवर्ड्स डिप्लोमेसी है, वेदर इट इज़ अ G20 और अ G8, इनफैक्ट G8 का इंडिया समूह का हिस्सा भी नहीं है, फिर भी इटली के प्रधानमंत्री ने हमें बुलाया था, मोदी जी को वहाँ पे. सो ये सब दिखाता है दैट इंडियाज वॉइस matters in the global context. So the forum approach to diplomacy is multilateralism या multilateral diplomacy. Multipolarity ये है कि when there are emerging world powers and there is one particular country that is having a stronger voice or a stronger trade relation or a stronger economy, so a bunch of other countries tend to cling to that country. जैसे in that part of the world on the west, USA is one such power. So in the North American continent, Canada हुआ, Mexico हुआ, they all look up to the US. Right. Same goes with South America. उसके भी जितने भी कुछ कंट्रीज है, वेनेजुएला, कोलंबिया, ये सब US के अंदर ही अधीन रह के काम करते हैं. सो US डोमिनेट्स द कॉन्वर्सेशन उस साइड ऑफ द वर्ल्ड का. तो पोलैरिटी का मतलब यही है कि हम मल्टीपल देशों के साथ एट द सेम टाइम हमारी पोलैरिटी मेंटेन कर सकते हैं, रादर देन जस्ट फॉलोइंग द लीड ऑफ वन मेजर कंट्री. तो ये एक प्रगतिशील देश की निशानी है कि अगर हम एक छोटे देश हैं, हम एक छोटा आइलैंड कंट्री हैं, तो जनरली ऐसा देखा गया है कि ये अपने से जो आसपास उस क्षेत्र में एक मेजर कंट्री है उसी के छत्र छाया में रहते हैं. पर एक प्रगतिशील देश जैसे इंडिया है, अब हम वो कॉन्सेप्ट को नलिफाई कर रहे हैं. अब हम किसी एक देश के या एक समूह के अंडर रहना नहीं चाहते हैं. हम हमारा खुद का स्टैंड ले रहे हैं ग्लोबल अफेयर्स में, और हम हर देश के साथ, जैसे इंडिया रशिया के जो रिलेशंस है, तो कुछ दिन पहले मोदी जी का एक दौर हुआ था रशिया और ऑस्ट्रिया का, तो उसमें पुतिन के साथ भी उनकी अच्छी तस्वीरें आई. देवर एमिकेबल फोटोज एट अ टाइम व्हेन इतना बड़ा क्राइसिस हो रहा है. तो ये हमारी मल्टीपोलैरिटी को दर्शाता है कि वी आर taking a stand for ourselves, and हमारा diplomatic या foreign policy does not depend upon the economy of 2-3 countries supporting us. हम सबके साथ अपना अलग इक्वेशन लेके चल रहे हैं. तो ये अलग इक्वेशन की अप्रोच को मल्टीपोलैरिटी कहते हैं डिप्लोमेसी की भाषा में. सिद्धार्थ भैया, जब हम डिप्लोमेसी की बात कर रही हैं एंड इन इंडिया अगर हम देखेंगे तो इनिशियल काफ़ी पहले समय से हमारे हमेशा हमारे पड़ोसी देशों से डिस्प्यूट्स रहे हैं, लाइक इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना एंड नाउ इंडिया बांग्लादेश. करेक्ट. बांग्लादेश में अभी जो कुछ हो रहा है कि वहाँ के जो PM है शेख हसीना इंडिया आ गए, उस पूरी सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? फर्स्ट पहले आप ये समझिए बांग्लादेश में आज हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, एंड व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस सिचुएशन? सो बांग्लादेश का ये जैसे कहते हैं ना, कोई भी विवाद या कोई भी इशू
सडनली बड़ा नहीं होता है। राइट। कुछ सालों से ये विवाद चला आ रहा है। ऑफ कोर्स इट स्टार्टेड एज व्हाट वी कॉल एज अ पीसफुल स्टूडेंट प्रोटेस्ट, और ये ज़रूरी भी था। बांग्लादेश की जो सिविल सर्विस है वो, क्योंकि आप तो इसी के अराउंड पॉडकास्ट भी करते हैं, आप खुद एस्पिरेंट से इतना मिलते हैं, तो यू माइट हैव नोटिस्ड कि ये बहुत ही ऐसा समूह है स्टूडेंट्स का जो बहुत परिश्रम करते हैं और इतने अटेम्प्ट्स देते हैं, मेंटल हेल्थ भी इनकी उस प्रोसेस में इफेक्ट होती है, एंड ये समूह अपने आप में बहुत मेहनती है। सो व्हेन समवन वर्क सो हार्ड दे वांट मेरिट टू टेक प्रेसिडेंस। तो बांग्लादेश में वही हो रहा था। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हम सब जानते हैं, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश का विभाजन हुआ, सो बांग्लादेश जब उसमें बना, शेख मुजीबुर रहमान, बांग्ला बंधु जिन्हें कहते हैं, वो एक मेजर फोर्स थे। और पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ साथ ऑलमोस्ट बांग्लादेश का हर व्यक्ति उन्हें बहुत रिस्पेक्ट के साथ देखता था। तो उन्होंने उस दौरान एक रिजर्वेशन शुरू किया बांग्लादेश सिविल सर्विस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में फॉर पीपल हु आर अफेक्टेड बाय द लिबरेशन वॉर। उसमें लोगों को रिजर्वेशन देने लगे। अब ओवर द पीरियड ऑफ दिस लास्ट 50 ईयर्स ये रिजर्वेशन बढ़ते चला गया, और इस बढ़ते हुए रिजर्वेशन के कारण मेरिट ने कहीं ना कहीं बैक सीट ले लिया। तो आज का जो नए पीढ़ी का बांग्लादेशी युवक है, वो चाहता है कि उसके मेरिट के बेसिस पे उसे एडमिशन दी जाए, जॉब्स दिया जाए, सिविल सर्विस में दाखिला हो, पर वो हो नहीं रहा था। 50 साल पहले कुछ हुआ हो, उसके बेसिस पे अगर हम आज भी अपना रिजर्वेशन और ये सारी चीज़ें चला रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि गवर्नमेंट निष्पक्ष होके नहीं काम करना चाहती है। वो एक समूह के साथ जुड़कर ही रहना चाहती है, और वो इसलिए भी है क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान की जो बेटी है शेख हसीना, हालांकि हमारे बहुत अच्छे टाइस रहे हैं बांग्लादेश के साथ, बहुत आत्मीय और पीसफुल टाइस रहे हैं, और शेख हसीना एक बहुत अच्छी लीडर भी हैं, बट उनकी जो पार्टी है अवामी दल, अवामी लीग जिसे कहते हैं हम बांग्लादेश की, वो काफ़ी साल से सत्ता में रही है। पिछले 15 साल से तो शेख हसीना खुद वहाँ पे एज लीडर थी, प्राइम मिनिस्टर थी। सो ऐसे में एक बड़ा चीज़ ये निकल के आता है कि ये लोग चाह रहे थे कि इन्हीं के लोग जो इनके सपोर्टर्स हैं आवामी लीग में और तरह तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में बने रहें। तो ये एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट के जैसे शुरू हुआ, जुलाई के महीने में ही मेजरली इसने जोर पकड़ा, और बस ये है कि इस प्रोटेस्ट प्रोसेस के चक्कर में 300 लोगों की हत्या या मौत हो चुकी है इस दौरान। सो ड्यू टू डिफरेंट स्टैम्पीड्स एंड डिफरेंट प्रोटेस्ट, तो ये एक बड़ा रूप ले चुका था, क्योंकि 300 लोग जो मरे, इसमें से एक लार्जर पॉपुलेशन बांग्लादेश का कॉमन स्टूडेंट पॉपुलेशन का है। तो लोगों के बीच एक बहुत बड़ा रिसेंटमेंट उठा, और क्योंकि सरकार इसे रोकने के लिए या सुलझाने के लिए कुछ नहीं कर रही थी, तो ये एक रिवोल्ट का स्वरूप ले लिया इसने। और रिवोल्ट ये हुआ कि लोगों ने उनके पैलेस में पहुंच के पूरी तरह से कब्जा कर लिया चीज़ों पर, और शेख हसीना हैड टू फ्लेड द कंट्री ओवरनाइट, और पहले निकल के वो अब भारत आई हैं, और कहने में आ रहा है कि अब वो भारत से लंदन जाने वाली हैं अगला असाइलम के लिए, पॉलिटिकल असाइलम के तौर पे। ये तो काफ़ी होता आया है, हमारे कुछ पड़ोसी मुल्क हैं जैसे पाकिस्तान एक्सेट्रा, जहाँ पे ये होता आया है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स फॉर अ कंट्री। और बांग्लादेश करंट हालात ये हैं इनके कि इनके एक नोबेल लॉरिएट है मोहम्मद यूनुस साहब, ही वॉज अ माइक्रो फाइनेंस के एक्सपर्ट थे, ये ग्रामीण बैंक इन्हीं का कॉन्सेप्ट था। सो मोहम्मद यूनुस साहब इंटरिम गवर्नमेंट के संस्थापक रहेंगे अभी, बट इन द मीन टाइम वहाँ पे फिर से इलेक्शंस होके आर्मी ने कहा है कि कंडीशन को स्टेबलाइज करेंगे। बट इंडिया का एक ही अप्रोच है, इंडिया इस मामले में वी आर न्यूट्रल। बांग्लादेश में जो भी सरकार बनेगी हम उसके साथ रहेंगे। दिस इज़ वेयर इंडियाज मल्टीपोलैरिटी कम्स इन टू प्ले। हम किसी एक लीडर या किसी एक व्यक्ति विशेष के साथ ही जुड़कर रहना नहीं चाहते। शेख हसीना के साथ वी एंजॉयड गुड रिलेशंस, बट वी केयर फॉर बांग्लादेश एज अ स्मॉल नेबरिंग कंट्री, एंड वी वांट पीस एंड स्टेबिलिटी टू कम देयर। तो हम उसकी नेक्स्ट गवर्नमेंट की भी साथ हम देंगे। इस दौरान उनको किसी तरह की अगर मिलिट्री या अदरवाइज रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़े, वो भी इंडिया प्रोवाइड करेगा। सो इंडिया इस वक्त एक न्यूट्रल स्टैंड लिए हुए है। ऑफ कोर्स आवर मेजर कंसर्न इज, जब भी इस तरह के किसी छोटे देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण आर्मी कूप होता है या एक आर्मी का लॉ ऑफ द लैंड आता है, तो इट बिकम्स अ सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट जिसे हम कहते हैं। सो टेररिज्म और इंटरनल सिक्योरिटी हमारे दो मेजर इश्यूज है अभी। हम नहीं चाहते कि ये इम्पैक्ट हो बांग्लादेश में, और यूएस का भी यही विजन है। ऑफ कोर्स व्हेन वी टॉक ऑफ यूएस,
their influence on a particular country is not very straightforward. Of course, they have their own internal strategies around it, and इन्होंने भी काफ़ी समय से सोचा होगा, क्योंकि बड़े देश, यूएस जैसे देश अगर चाहें तो इस तरह के प्रोटेस्ट को रोकने में काफ़ी हद तक प्रयास कर सकते हैं. But when they don't intervene means that they want someone else to take over. So it is not a very straightforward equation with the US. But India, currently we just want peace and stability to restore in Bangladesh. डू यू थिंक इसमें यूएस का भी इन्फ्लुएंस है, क्योंकि जस्ट बिफोर फ्यू मंथ्स यूएस ने बांग्लादेश के अंदर मिलिट्री बेस कैंप सेटअप करने के लिए अप्रोच किया था एंड बांग्लादेश डिनाइड. डू यू फील कि इसमें यूएस का कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है, दैट्स द रीजन सडन एक इतना बड़ा आउटरीच आया? और बिल्कुल. सो ये एक अच्छा सवाल है. यूएस I don't think is again a very straightforward approach. An open approach to diplomacy nahi hai. They have their internal agendas that they wish to meet. The West has always been like that. That is how they have been able to dominate for such a long time. Of course, every country wants its personal interests first, but personal interests at the cost of human interests nahi hona chahiye. Right. So that is where I feel US has to come clean in every global affairs issue. In this case, I do think that there is a certain amount of involvement in terms of how they wanted this to turn out. They could have also intervened at the right time because Bangladesh receives a lot of endowment, जिसे हम कहते हैं, funds from the US. Yes. They always listen to the US in terms of governance related issues. So अगर US देख रहा है that there is unrest in a part of the world जिसे हम control influence करते हैं, तो इफ़ दे वांट दे कैन ऑल्सो टेक प्रिवेंटिव मेजर्स, जिससे कि इस तरह की चीज़ें की जाए, जिससे कि वो प्रोटेस्ट शांत हो जाए, उनके जो डिमांड्स है स्टूडेंट कम्युनिटी के उन्हें एड्रेस किया जाए, उसे सॉल्व किया जाए. कुछ दिन तक अगर आप सॉल्व नहीं करते हैं तो ये भी दिखाता है कि आपके पर्सनल या सेल्फिश इंटरेस्ट उसमें vested है. So by not inaction is also a very wrong way of handling a situation. So I think more than US having its own influence, their lack of action and lack of one desire to stop this issue from turning big, ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं they were involved. जब हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो वी सी बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिससे बांग्लादेश और इंडिया के बीच में कई सारे इश्यूज हैं, बॉर्डर इश्यूज हैं. तो व्हेन वी सी कि एक रोहिंग्या का इशू है, अब क्योंकि ये बांग्लादेश में सारी सिचुएशन, उसकी वजह से BSF काफ़ी एक्टिव हो गई इन दी बॉर्डर एरियाज. लास्ट डे लाइक यस्टरडे आई सॉ इट. तो वहाँ पे डू यू फील कि बांग्लादेश इंडिया के लिए एक थ्रेट है? नॉट एट द मोमेंट, बट येस, there is a possibility that Bangladesh, because of the current instability and outrage situation, it can become a major reason for safe haven around terrorism, around internal security. Of course, without naming a few organizations that work there, क्योंकि मैंने इसको काफ़ी डिटेल में स्टडी किया, I feel that there is a strong possibility that Bangladesh has the kind of structure right now that it can become the next Pakistan. So there is a huge void there which can actually address this. So बिल्कुल ज़रूरत है इसे बहुत tactfully deal करने की. India has to also support in terms of security aid to Bangladesh, because ये हमारा एक फोकस ऑलरेडी है, बट इसे हमें इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है. बिकॉज कई बार आप मदद करके बहुत बड़ी हानि को टाल सकते हैं, rather than intervening at the last minute and stopping something that has already happened. So इस लेवल पर major players around, of course India, because we have always, in fact we have helped in the Bangladesh liberation war. So Bangladesh always looks up to us for a lot of things. तो हमारा सिक्योरिटी के अराउंड एड बढ़ा करके अगर हम उस सिचुएशन को स्टेबलाइज कर सकें, सो देन आई थिंक वी विल बी एबल टू जिस तरह से हम पीसफुली चलते आ रहे हैं, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट मेंटेनिंग अ फाइन बैलेंस इन टर्म्स ऑफ आवर रिलेशंस, तो वो हम बना सकते हैं. ऑफ कोर्स वी डोंट वांट अनदर Pakistan like nation to come out in this side of the world. And how do you see this situation कि जब भी let's say पाकिस्तान या बांग्लादेश की अगर हम बात करें, जब भी यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी में डिसबैलेंस होता है, तब
दोज हिंदूज हु आर लिविंग इन दिस कंट्रीज लाइक पाकिस्तान और बांग्लादेश, Correct. वहाँ पे उनके ऊपर सडनली सिक्योरिटी थ्रेट्स बढ़ जाते हैं, फीमेल्स के साथ रेप होता है, घर लूट लिए जाते हैं, मर्डर्स होते हैं. हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन? It's a very sad state of affairs here. Even during Bangladesh Liberation War, there have been hundreds of accounts, books and otherwise documentaries and Yes. a lot of classified literature जिसे otherwise archives में ही रखा गया है, that war crimes of the Liberation War, they were humongous. यानी पाकिस्तान आर्मी ने जो वहाँ पे किया, especially with women and children, Yes. it's a well documented case of war violence. So I think बहुत एक serious issue है, but I think as a global order and as a country हम इन सब issues को पीछे छोड़ आए हैं. Of course with India and Pakistan during the partition इस तरह की काफ़ी चीज़ें हुई थी. Within Pakistan it continued and prevailed for a very much longer time than in Yes. India. And of course this has always taken shape during wars. कारगिल वॉर एंड इस तरह की चीज़ों में भी सुनने में आता था कि पाकिस्तान में अगर कोई इंडियन सोल्जर है तो दे वुड म्यूटिलेट हिज बॉडी एंड सेंड इट बैक. तो इस तरह का वायलेंस प्रिवेल्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट वी हैव बीन एबल टू काइंड ऑफ लीव इट बिहाइंड एंड मूव फॉरवर्ड. एंड बांग्लादेश राइट नाउ इज एट अ टाइम जब उसको मदद की ज़रूरत है. सो मेरा यही कहना है कि अभी जो प्रॉब्लम हुई है वो सिर्फ एक रिवोल्ट के जैसा है. इट इज़ येट नॉट अ आर्म्ड रेबेलियन. एक रिवोल्ट वर्सेस आर्म्ड रेबेलियन में बहुत बड़ा फ़र्क है. रोहिंग्यास की हम बात कर रहे थे, बांग्लादेश जो लिबरेशन आर्मी वॉरियर्स थे उनकी बात कर रहे थे. ये सैम मानेकशॉ ने ही इस आर्मी को भी बनाया था. द कॉमन सिटीजन ऑफ बांग्लादेश कुड ऑल्सो बी ट्रेन्ड फॉर द वॉर. तो ये एक पूरा वेल डॉक्यूमेंटेड चीज़ है हिस्ट्री में. तो ये चीज़ें अभी तक सिर्फ एक रिवोल्ट के रूप में हैं. अगर इन तक हथियार पहुंच गए, अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, अगर इनको भड़का दिया गया, एंड पाकिस्तान इज ऑलवेज ऑन द लुकआउट टू क्रिएट सम टर्मोइल इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. सो देयर इज अ रीजन दैट if the people right now they are weaponized, then it can lead to a much bigger crisis, both Bangladesh ke liye and in around the border with India and around West Bengal. So this is the right time with via this podcast मैं अर्ज करना चाहता हूँ both the government mechanism with which I am working as well as international powers. It is the time to intervene and step up your aid, step up your military as well as security support to Bangladesh to control the situation. इसी टाइम पे हर देश को मदद की ज़रूरत होती है. वो जब नहीं मिलता है देन हमें अगले 20-30 साल के लिए उससे निपटना पड़ता है. एंड व्हाट डू यू फील अबाउट दिस कि जैसे हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है लाइक पाकिस्तान, चाइना एंड नाउ बांग्लादेश, इन कंट्रीज के साथ हमने हमेशा देखा है कि कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स हमेशा रहे. ऑफ कोर्स पाकिस्तान एंड चाइना के साथ काफ़ी सारे इश्यूज हुए हैं. डू यू फील इंडिया इज सेफ टुडे? इसका अगर मैं सीधे तरह से जवाब दूं तो इंडिया इज सेफ टुडे. हमने खुद ने और ये पॉडकास्ट के माध्यम से जितने दर्शक देख रहे होंगे ऑब्जर्व किया होगा लास्ट 7-10 सालों में जो हम टेररिस्ट अटैक्स सुनते थे, शहरों में बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, इन सभी की घटनाएं कम होती रही हैं एंड अब सुनने में नहीं आता. तो टेररिज्म दो तरह से मैनिफेस्ट होता है. एक होता है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इन्फिल्ट्रेशन, और एक होती है इंटरनल सिक्योरिटी. सो इसे हम जब मोदी जयशंकर डॉक्ट्राइन ऑफ डिप्लोमेसी की बात करते हैं, इन्होंने ये बात पहले ही कह दी थी अपने लास्ट इनिंग्स में, जयशंकर साहब अलॉन्ग विथ मोदी सर, दैट हमें डिप्लोमेसी सिर्फ रिश्ते बनाने के लिए नहीं करना है. एक्सटर्नल अफेयर्स हैज एन इक्वली इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन सिक्योरिटी. सो हमारा इंटरनल सिक्योरिटी हमने मजबूत करना है और ये हम लास्ट 5 से 7 सालों में कर पाए हैं मेरे हिसाब से. इसका एक मेजर श्रेय आई थिंक 4 लोगों को जाता है. एक तो प्रधानमंत्री मोदी, जयशंकर साहब, इनके साथ साथ लेट CDS जनरल बिपिन रावत साहब जो हमारे फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, एंड हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब. एंड स्पेशली NSA अजीत डोवाल एंड बिपिन रावत साहब, दे वर फ्रॉम द सेम प्लेस, पौड़ी गढ़वाल जिसे कहते हैं. सो आई थिंक दैट हैज़ contributed a lot to the way their personal chemistry and the chemistry of the current key people in the cabinet has played. इंटरनल सिक्योरिटी में हमने इंडिया को मजबूत तो किया है. ये बात हम हिस्टोरिकली एंड फिगरेटिवली दोनों कह सकते हैं. हाँ, जहाँ तक बात है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की, वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो. ऑफ कोर्स विथ
countries like China and Pakistan, which do not believe in peace in the subcontinent. It is a tough uphill climb, but we are still trying to manage the situation well without letting it escalate beyond a certain limit. Siddharth bhaiya, now let's talk about India as a global leader. Correct. But कई पिछले कुछ सालों से लाइक स्पेशली जब से 2014 के बाद से जब से मोदी गवर्नमेंट स्टार्ट हुआ है तब से एक चेंज दिखा है इंडिया को एज अ ग्लोबल लीडर पोर्ट्रे करने में. करेक्ट. बट व्हाट डू यू फील एज अ डिप्लोमेट, आपको क्या लगता है, क्या इंडिया रेडी टू बी अ नेक्स्ट सुपर पावर? सो एज अ सुपर पावर इंडिया का जो टेक है इसमें इज दैट वी डोंट वांट us to become a superpower, or at least go by the old definition of a superpower. Okay. So superpower जैसे USA हुआ, USSR हुआ, of course infrastructure wise a lot of development has happened in the West, in European countries, Western Europe में पूरा, and then US वगैरह में, but more than that a large part of their ability to dominate the world is based on their military might. Yes. तो मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड मिलिट्री दबदबा जिसे कहते हैं दुनिया भर पे, वो इंडिया बना के रखना नहीं चाहता है. इंडिया इज वेरी क्लियर दैट आवर टेक ऑन बिकमिंग अ सुपर पावर इज वाया हेल्पिंग अदर कंट्रीज, स्पेशली द ग्लोबल साउथ. पूरा साउथ अमेरिका, पूरा अफ्रीकन महाद्वीप काफ़ी हद तक अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज से भरा हुआ है. तो इन्हें ऊपर उठाना, even African Union को India was responsible for having them included in the G20 last year. तो ये एक मेजर स्टेप था. ये हमारा कमिटमेंट दिखाता है जो हम हमारे जैसे ही दौर से गुजर रहे बहुत सारे देशों के साथ कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हमने ये पूरा डेवलपमेंट जर्नी अपने दम पे किया है, एंड वी हैव फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस एंड वी फील all of the other countries that are facing these challenges. So India's version of superpower is one not based upon the northern hemisphere concept. हम northern hemisphere में dominate नहीं करना चाहते, हम southern hemisphere को focus करना चाहते हैं, global south, and हम साउथ ईस्ट एशिया को साथ लेके चलना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेड रिलेशंस, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक रिलेशंस. हम अफ्रीकन महाद्वीप को साथ लेके चलना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, in terms of infrastructure, industry, and we want to take South America along because South America again has been in terms of governance. बहुत सारे देश हैं. Venezuela currently was undergoing a major governance crisis. Yes. Liberate Venezuela के posters भी trend कर रहे थे. So इस तरह के South America में देखा गया है that there has always been a dictatorial, autocratic form of government. Okay. Democracy has never really been established. So South America needs governance reforms. Africa needs industry, innovation, infrastructure kind of reforms. And the global south, which already has all of these, the Southeast Asian belt of this region, there we need better trade diplomacy, better economic exchange. So कुछ बहुत अच्छे countries है. Bhutan, for instance, is a major partner of India and probably the best country in terms of sustainable development goals. यानी भूटान विश्व का पहला और सबसे बड़ा कार्बन न्यूट्रल, कार्बन नेगेटिव कंट्री है. यानी उनका देयर आउटपुट टू द वर्ल्ड इज सो गुड दैट दे आर इन कार्बन नेगेटिव. तो ये कुछ ऐसे कंट्रीज है जिन्होंने बहुत बढ़िया तरह से अपने डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज को रखा है, और इंडिया इन्हीं तरह के मॉडल्स के साथ कनेक्ट करता है. सो इंडियाज मॉडल ऑफ बिकमिंग अ सुपर पावर इज focusing on this belt that I explained in the global south and helping them recover from economic, governance and otherwise developmental issues. इंडिया की हमेशा एक डिप्लोमेसी रही है अराउंड टेक. तो पहले, और लास्ट टाइम वी मेट हमने बात किया था टेक डिप्लोमेसी के बारे में काफी ज्यादा. तो पहले आप ऑडियंस को बता दीजिए टेक डिप्लोमेसी क्या होता है और एंड हाउ इंडिया इज परफॉर्मिंग इन दिस. सो आई थिंक एक जैसे हम हार्ड पावर कहते हैं, सो हार्ड पावर इज ऑल मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री. सो इंडिया वेरी सून इट डिस्कवर्ड दैट आवर form of diplomacy lies in our soft power rather than using all of our hard powers. And when we talk of soft powers, tech diplomacy is India's number one key point. इसे हमने कुछ specifically डिज़ाइन नहीं किया, डेवलप नहीं किया. ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत प्यारा उदाहरण है. बिकॉज ऑफ इंडियाज एजुकेशन सिस्टम जो हमने लास्ट 70 years में डेवलप किया, a lot of institutions have produced world-class students and leaders. And this is not just in India, but globally. In fact, हम सिलिकॉन वैली जो वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स ऑफ टेक कहलाता है, वहाँ पे हम देखें तो एवरी मेजर लीडर ऑफ अ कंपनी इज ऑफ इंडियन ओरिजिन.
यानी देयर इज अ सुंदर पिचाई एट गूगल, सत्या नडेला एट माइक्रोसॉफ्ट, शिव नडार एट HCL, अरविंद कृष्णा एट IBM, शांतनु नारायण एट एडोबी, अजय बांगा एट वर्ल्ड बैंक. ये इसी बात को दिखाता है दैट देयर इज समथिंग राइट दैट वी हैव डन, बिकॉज ऑल ऑफ दीज पीपल वेर एजुकेटेड इन इंडिया, एटलीस्ट इवन टिल देयर अंडर ग्रेजुएट ईयर्स. और सुंदर पिचाई की हम बात करें, ही इज अ मेटलर्जिकल इंजीनियर फ्रॉम IIT खड़गपुर एंड टुडे ही इज लीडिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी. तो ऐसा कुछ तो सही होगा जो इंडिया कर रहा है. तो दैट इज वेयर द एक्स फैक्टर लाइज इन आवर एजुकेशन सिस्टम, एंड दैट इज व्हाट हैज रिजल्टेड इन टेक डिप्लोमेसी. तो हमारा मेजर सॉफ्ट पावर है. टुडे इंडियंस डोमिनेट ऑलमोस्ट a great deal, more than 75% of global tech, जिसे हम कहते हैं. That includes some of the major tech corporations of the planet, and there are several Indians in leadership roles. So all of this goes on to prove that one, the world recognizes an Indian man's integrity. To work at a leadership role in a complex situation requires a great deal of integrity. तो इंडिया का वो लोहा विश्व ने माना है. दूसरी बात इसमें यह आती है दैट मोर देन एनीथिंग इंडियाज एजुकेशन सिस्टम हमें एक एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज देता है. तो इनफैक्ट जब लैरी पेज सर्गी ब्रिन जो गूगल के संस्थापक है, व्हेन दे क्रिएटेड दिस अम्ब्रेला ऑफ कंपनीज कॉल्ड अल्फाबेट, तो उन्होंने एक फाउंडर्स नोट लिखा. तो उसमें भी उन्होंने ये बात लिखी थी, व्हाई वी थिंक सुंदर पिचाई इज द राइट सक्सेसर इज बिकॉज ही हैज एन एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज of Google product and services. So I think that knowledge base that India has created, वो एक रेवोल्यूशन को उसने जन्म दिया. तो टेक डिप्लोमेसी आज सिर्फ हमारा एक सॉफ्ट पावर नहीं, एक रेवोल्यूशन है जो इंडिया ने कॉज किया. पहले कभी भी विश्व में ऐसा देखा नहीं गया है एक देश का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस ग्लोबल टेक के डेवलपमेंट में, बोथ इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर. सो आई थिंक इंडिया हैज़ बीन एबल टू क्रैक दैट कोड वेरी नाइसली, एंड दैट इज वाई वी आर टुडे. And how we can use that, एक बड़ा क्वेश्चन ये है. So I think a major way is through by influencing the world towards responsible use of technology. India today is at the forefront of every major technological change. Businesses of the internet हम कह लीजिए, generative AI कह लीजिए, बहुत सारे major leaps हम बना रहे हैं. And that is where I think India has the ability to influence the world order, because the world today runs on our smartphones. It does not run in heavy industries or in military might. It runs on people's mobile phones. So if you can control the narrative, if you can control the technology behind it, you can influence the world. And that is where India is currently poised today. Is India efficient to see a Indian CEO, a Indian company and a global product or a global market? Yeah. क्योंकि Indian CEOs तो हर जगह stand कर रहे हैं. So this is the first question. And the second one is कि क्या Indian government as a diplomacy ये कोशिश कर रही है कि जो CEOs या जो इंडियन टैलेंट्स है जो बाहर की कंपनी को लीड कर रहे हैं या अब्रॉड कंपनीज को लीड कर रहे हैं, टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं, वो इंडिया वापस आए एंड इंडिया में ऐसा कुछ बना पाए? ये एक्चुअली आई थिंक बाय डिफॉल्ट ही ये हो रहा है. अ लॉट ऑफ मेजर, अभी कल ही में पढ़ रहा था, IIT मद्रास हैज रिसीव्ड एन एंडाउमेंट वर्थ 200 crores फ्रॉम वन ऑफ इट्स अलुमनाई जो US में बेस्ड है. तो आई थिंक ये एक जिसे हम कहते हैं ना रिवर्स ब्रेन ड्रेन, ये ऑलरेडी चल रहा है. एंड जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति वापस इंडिया रिलोकेट हो, बट बिकॉज दे आर ऑफ इंडियन ओरिजिन दे आर एबल टू वन give a lot back to India in terms of wealth, in terms of FDIs, in terms of talent. तो ये सारी चीज़ें भी एक तरह से रिवर्स ब्रेन ड्रेन की कैटेगरी में आता है, बिकॉज सिलिकॉन वैली का भी अपना अलग सक्सेस स्टोरी, एंड आई एडमायर दैट. आई थिंक जो भी इंडियंस वहाँ मूव करे थे 90s में, अर्ली 2000 to 2010 के बीच, दे वर एबल टू एंटर द इंडस्ट्री एट अ टाइम व्हेन इट वाज वेरी नेसेंट. तो उन्होंने अपने लिए बहुत सही डिसीजन लिया सिलिकॉन वैली मूव होके. बट टुडे वो द सेम इंडियंस आर गिविंग बैक टू इंडिया. वो अपने उधर अगर खुद उन्होंने स्टार्टअप शुरू किया है तो उनका ऑफशोर बेस इंडिया में डाल रहे हैं. सो दे आर क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, दे आर गिविंग मनी बैक टू देयर अलुमनाई इंस्टीट्यूशंस लाइक IITs एंड IIMs. दे आर एबल टू क्रिएट दैट नरेटिव. सो वो एक बहुत बड़ा चीज़ है. एक दूसरा बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा, दैट लोकल इंडियन कंपनी and a global market, yeah, global product. So I think we are headed in that direction, but however it will take a few years, because Silicon Valley started this trend of creating products that have a global market
way back in 1960s, early 50s and all. So काफ़ी सारे कंपनीज ऐसे हैं, इनफैक्ट मोटोरोला का कहते हैं जो सबसे पहला मोबाइल बनाने वाली कंपनी है वो मोटोरोला थी, और उन्होंने फर्स्ट वर्किंग प्रोटोटाइप का पेटेंट 1 जनवरी 1973 में कर चुके हैं. तो 1973 से वो उस टेक में लगे हुए हैं. सो आई थिंक मेजर कंपनीज हैव सक्सीडेड बिकॉज ऑफ बीइंग एन अर्ली मूवर एडवांटेज इन सिलिकॉन वैली. इंडिया में टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन, ऑफ कोर्स वी वर एट द फोरफ्रंट ऑफ अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज, बट इन इंडियन लोकल मार्केट last 10 to 15 years mein hi there has been a boom in the startup ecosystem. Now with Shark Tank and all, people recognize entrepreneurship as a mainstream profession and so much funding opportunity and everything. So we are still, I would say, 20 years behind Silicon Valley. So we still have time. बट दिस डिकेड में जिसे वेब 3.0 कहते हैं, मैं समझता हूँ ये इंडिया का डिकेड है, बिकॉज इसमें जनरेटिव एआई के अराउंड बहुत सारे इंडियंस हैं जो कमाल का काम कर रहे हैं, बोथ विद इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया. सो ये समय दूर नहीं है जब एक इंडियन कंपनी एंड इंडियन CEO विल हैव अ ग्लोबल मार्केट. वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड क्रिएटिंग इट. इसके अराउंड एक बेहतरीन एग्जाम्पल UPI का है. UPI is probably India's greatest technological advantage that we have shipped globally, जिसके बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करते बिकॉज एक सरकारी टेक्नोलॉजी है समझ के छोड़ देते. बट नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज अ ग्रेटेस्ट इनोवेटर इन टर्म्स ऑफ बैंक टू बैंक ट्रांसफर. आज आपको US में या यूरोप में अगर किसी को पैसा भेजना रहता है, इट्स स्टिल अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. लोग मोस्टली 2 ऐप्स यूज़ करते हैं, रेमिटली और वाइस. लोगों ने सुना होगा. एंड इसमें पैसा भेजने में आपको इट्स लाइक अ NEFT और RTGS, आपको काफ़ी समय लगता है. जब भी कोई फॉरेन डिप्लोमेट दिल्ली आता है, हम उन्हें किसी सब्जी मंडी लेके जाते हैं, जर्मन एम्बेसडर या किसी को भी, दे आर अमेज्ड कि आप 2 सेकेंड में एक सब्जी वाले के खाते में पैसा भेज सकते हैं जस्ट बाय स्कैनिंग अ QR कोड. सो आई थिंक इंडिया हैज़ क्रिएटेड अ ग्लोबल टेक राइट देयर. बस ज़रूरत है इसे मार्केट करने की. US में मैंने यही चीज़ सीखा दैट US मार्केट्स द हेल आउट ऑफ एवरीथिंग. छोटी सी चीज़ को वो बताते हैं दैट वी हैव क्रिएटेड. UPI वॉज our answer to a global technological development, a global market, a local indigenous tech but a global market. आज सिंगापुर हुआ, फ्रांस हुआ, हमने सबको UPI टेक्नोलॉजी मुहैया कराई है. So they are now having UPI because of us. So I think it has this is the time when we are creating tech that has a global application. It is just that we also need to market and brand it in such a fashion that the world recognizes that this is India's output in terms of tech. But do you feel कि इंडियन टैक्सेशन सिस्टम के कारण भी ये चीज़ को और फास्ट किया जाता है, बट ड्यू टू द टैक्सेशन सिस्टम ये चीज़ें थोड़ा और लेट हो रहा है? बिकॉज हम वी हैव सीन कि इंडिया की कई सारी ऐसी कंपनीज दोज हू आर ऑन टॉप, बट उनके जो हेडक्वार्टर्स है या रजिस्ट्रेशन है वो दूसरी कंट्रीज में है. Do you feel कि taxation system is a challenge for these startups? I think to a great extent, yes. But then I think it is being solved. There are a lot of measures, of course, not in terms of the direct implications of the budget, but US में बहुत सारी सुविधाएं हैं. डेलावेयर नाम का एक जगह है न्यूयॉर्क में, बहुत सारे अपने इंडियन स्टार्टअप्स वहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड हैं. Yes. वो इसलिए बिकॉज इट्स कॉल्ड अ टैक्स हेवन फॉर स्टार्टअप्स. सो इस तरह की बहुत सारे मेजर्स हैं ग्लोबली जो अब अवेलेबल है फॉर इंडियन कंपनीज टू हैव अ लार्ज ओवरसीज बेस. ऑफ कोर्स आवर taxation system could have evolved better with a more global approach in the 90s, the second half of 90s, early 2000s. Tab there were some stringent measures required, and because of that, kahin na kahin, we were not able to keep pace with the overall development of businesses. तो इंडिया का अभी जो कोर कंपिटेंसी है वो टेक डेवलपमेंट में है, बिजनेस डेवलपमेंट में नहीं है. सो वेन एवर वी टॉक ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट, दैट इज वेयर, जैसे UPI फॉर इंस्टेंस, वी हैव द टेक, but for the world to recognize it, the business development arm has to be strong. तो वहाँ पे हमें काम करने की ज़रूरत है. Taxation and all other financial measures are part of the business development vertical. अगर उसे हमने solve कर दिया, we'll be able to ship our tech to the world right now. सिद्धार्थ भैया, आप Web3 के बारे में आपने बात किया था. मैं चाहता हूँ Web3 एंड यू सेड कि Web3 जो है वो इंडिया का डेकेड होने वाला है. Web3 के बारे में ऑडियंस को समझा दीजिए एंड Web3 की हिस्ट्री भी समझा दीजिए कि Web 2.0 और 1.0. राइट. सो आई थिंक Web 3.0 जिसे हम कहते हैं, दिस इज द आई हैव नोटिस्ड अ ट्रेंड. ये हम एक्चुअली डिकेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो जब हम 3.0 की बात कर रहे हैं तो हम 2021 से 30 वाले डिकेड को कह रहे हैं. और
हर डिकेड के स्टार्टिंग में मैंने देखा है देयर इज अ टेक्नोलॉजी दैट कम्स जो कि उस डिकेड के एंड तक हमारे एवरीडे इंटरनेट एक्सपीरियंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुकी है। लास्ट डिकेड और उसके पहले वाले जो डिकेड था दैट इज 2011 से 20 और 1 से 10, ये वाले 2 डिकेड्स जो थे इन्हें मैं समझता हूँ वेब 2.0 और वेब 1.0 कहा गया है इन द वे द इंटरनेट इवॉल्व्ड अराउंड अस। सो इंटरनेट का जन्म जब हुआ था, काफ़ी लोग जान के हैरान रहेंगे, उधर भी एक इंडियन व्यक्ति थे, हिज नेम वॉज प्रोफेसर राजीव मोटवानी, लेट प्रोफेसर राजीव मोटवानी। सो ही वॉज अ HOD ऑफ कंप्यूटर साइंस एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड ही वॉज वर्किंग ऑन एन एल्गोरिदम कॉल्ड पेज रैंक एल्गोरिदम। तो 93-94 में हमने वर्ल्ड वाइड वेब कहा इंटरनेट को, जब हमने देखा कि बहुत सारे डिवाइसेस, बहुत सारे कंप्यूटर्स विश्व भर से जुड़ चुके हैं। तो देयर इज लॉट ऑफ नॉलेज एंड डेटा पॉइंट्स वेटिंग टू बी इंटरेक्टेड विद ईच अदर। तो हम इससे टिम बर्नर्स ली थे, संस्थापक कहते हैं इनको वर्ल्ड वाइड वेब का। ही कॉइन्ड द टर्म एंड ही गेव द ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। वहाँ से 1998 के दौरान प्रोफेसर राजीव मोटवानी वाज वर्किंग ऑन पेज रैंक एल्गोरिदम। ठीक है भाई, सही सीधी सी बात है, अगर बहुत सारे फ़ोन लाइंस चलते हैं तो हमें उन्हें जोड़ने के लिए ज़रूरत होती है एक टेलीफोन डायरेक्टरी की। तो वैसे ही जब इंटरनेट में सारे कंप्यूटर्स और डेटा पॉइंट्स को जोड़ रहा है तो एक सर्च इंजन की ज़रूरत थी। एंड इसी चीज़ को लैरी पेज और सर्गी ब्रिन, जो कि उस समय उनके डॉक्टरल स्टूडेंट्स थे, PhD के स्टूडेंट्स थे राजीव मोटवानी साहब के अंडर, दे रियलाइज दैट वी कैन टर्न दिस इनटू अ वायबल प्लेटफॉर्म, वी कैन टर्न दिस इनटू वेबसाइट। सो एज पार्ट ऑफ देयर सबमिशन उन्होंने गूगल नाम की वेबसाइट को बनाया और फिर कुछ महीनों में उन्होंने उसके एल्गोरिदम को परफेक्ट किया इस उन्हीं के वर्क के बेसिस पे, एंड वी वर एबल टू क्रिएट दिस सर्च इंजन एक्सपीरियंस दैट रैंक्स थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ योर डिजायरेबिलिटी, ऑन बेसिस ऑफ मशीन लर्निंग टुडे। ये पूरा एल्गोरिदम वहीं से डिज़ाइन हुआ। नाउ कम्स द फर्स्ट डिकेड ऑफ द इंटरनेट, 2001 से 10 वाला। 2003 के दौरान एक बड़ा शिफ्ट आ रहा है। कुछ लोग सोचते हैं कि नाउ दैट वी हैव सर्च इंजन फॉर कनेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, हमें सर्च इंजन फॉर पीपल की ज़रूरत है। तो इस दौरान जन्म हुआ सोशल नेटवर्किंग का। सो ऑरकुट एक वेबसाइट थी जिसे मैं समझता हूँ काफ़ी लोग जानते होंगे। ये वो मेजर ऐसी वेबसाइट थी जो पहले इसमें आई, बट अगेन द फाउंडर हैड नॉट अ लॉट ऑफ कन्विक्शन बिहाइंड इट। ऑरकुट बायोकोटन एक टर्किश सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, आज लोग उन्हें जानते भी नहीं है शायद दुनिया में। इंस्टाग्राम पे भी उनके करीब 9,000 फॉलोअर्स के करीब ही हैं, बट ही वॉज द फादर ऑफ वॉट वी कॉल अ सोशल नेटवर्किंग फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। बट देन ही डिड नॉट परसीव लॉन्ग इनफ विद द प्रोडक्ट। एट द सेम टाइम एक फर्स्ट ईयर के कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट मार्क जकरबर्ग हार्वर्ड पहुंचते हैं। विंकलवॉस ट्विंस, कैमरून और टाइलर, 2 भाई थे, वो उनसे कहते हैं, साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स थे, तो उनको लगा सोशल नेटवर्किंग काफ़ी चलेगा, बट उन्हें कोडिंग नहीं आती थी। तो उन्होंने कहा कि जो भी हमें ये वेबसाइट बनाने में हेल्प करेगा, वील पे देम सो मच मनी। जकरबर्ग टेक्स अप दैट एड एंड ही स्टार्ट्स बिल्डिंग। विद इन अ फ्यू वीक्स जब ये दोनों भाई दे वर ऑफ कैंपस, द वेबसाइट बिकेम अ मैसिव हिट। इतना दैट विद इन द फर्स्ट सेमेस्टर इटसेल्फ जकरबर्ग को एक कॉल आता है सिलिकॉन वैली में, शॉन पार्कर से, कहते हैं कि मैं इतने $1 मिलियन आपके इस प्रोडक्ट में लगाना चाहता हूँ, आप यहाँ आइए, ड्रॉप आउट करके वील मेक अ कंपनी। सो आई थिंक पहले 2-3 साल में एक रेवोल्यूशनरी टेक आया। बाय 2010 फेसबुक वॉज द रीज़न वाई हम लोग इंटरनेट खोलते थे। फिर आता है 2011 से 20 वेब 2.0 जिसे हम कहते हैं। और ये वाले दशक की सबसे मेजर टेक्नोलॉजी की अगर मैं पूछूं आपसे बात क्या है, तो वो है स्मार्टफोन्स। स्मार्टफोन्स आए, स्मार्टफोन्स के आ जाने से ऐप्स आ गए। और पहले 2-3 साल में 2 लड़के थे, केविन सिस्ट्रॉम एंड ब्रायन एक्टन जैनकुअम। ये तीनों लड़कों ने मिल करके ये सोचा दैट वी नीड एप्स दैट सॉल्व फॉर द मोस्ट क्रूशियल प्रॉब्लम्स राइट नाउ। तो व्हाट इफ सिनेरियोस, कि तब लोगों को अगर मैसेज करना होता था बहुत मुश्किल से SMS आप भेज पाते थे फ्यू कैरेक्टर्स में। इंटरनेशनली बहुत खर्चा होता था। मैंने खुद 2010 में सिंगापुर से एक SMS भेजा था, 25 रुपये लगे थे इंडिया भेजने में। तो उसके अलावा अगर आप फोटो या वीडियो भेजते थे तो वो MMS के फॉर्म में जाते थे एंड दे वर वेरी एक्सपेंसिव। जबकि तो दैट इज़ वेयर ब्रायन एक्टन एंड जैनकुअम थॉट दैट वी नीड टू क्रिएट a platform for IM, instant messaging, using the power of the internet. तो इस तरह से व्हाट्सएप और केविन सिस्ट्रॉम ने इंस्टाग्राम, ये 2 प्लेटफॉर्म्स का इजाद किया। एंड ये इतने बेहतरीन प्लेटफॉर्म्स बन गए दैट बाय 2020 द एंड ऑफ वेब 2.0 वाला डिकेड, ये दोनों वो रीज़न थे। हम कहते हैं सुबह चेहरा धोने से पहले हम
इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चेक करते हैं. सो दे बिकेम द रीजन फॉर आवर इंटरनेट एक्सपीरियंस. और अब जो तीसरा डिकेड है 2021 से 30 वाला, इसमें अगर हम सोचे कि ऐसा क्या टेक आया जो इसने दुनिया बदल दी हो पहले 2-3 साल में, तो एक आंसर आएगा, वो है जेन AI, जनरेटिव AI. And by 2030 there is a potential that generative AI will change the game forever. आज हमारे पास कुछ प्लेटफॉर्म्स है, गूगल का जेमिनाई है, पहले बार्ड के नाम से था. मेजर इंडस्ट्री लीडर सभी लोग जानते हैं, ChatGPT जो कि OpenAI को ओन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट है. सिमिलरली लामा 3 है फेसबुक या मेटा का, जो कि आज आपके व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में भी इंटीग्रेट हो चुका है. तो ये कुछ 3 मेजर टेक्नोलॉजीज हैं, नेसेंट स्टेज में है, बट बाय 2030 दे विल बी द वे वी कनेक्ट टू द इंटरनेट. हम रोज सुबह इन्हीं के माध्यम से कोई ना कोई हमारा एवरीडे एक्सपीरियंस करेंगे. तो हर दशक के स्टार्टिंग में देयर इज अ टेक्नोलॉजी दैट कम्स दैट चेंजेस द फेस ऑफ दैट डिकेड फॉर एवर. ये एक इम्पॉर्टेंट क्लू है फॉर एवरी एस्पिरेंट, एवरी स्टूडेंट आउट देयर, दैट identify these trends at the beginning of every decade because they have a potential to change the industry by the end of the decade. So अगर कोई ऐप डेवलपर था पिछले दशक में वेब 2.0 में, तो अगर वो उसने पहले 2-3 साल में एंड्रॉयड एंड iOS एप्स स्विफ्ट वगैरह पे कोड करने लग गया हो, तो बाय 2020 या तो वो बहुत बड़ा मिलियनेयर एंटरप्रेन्योर बन चुका होगा अपनी खुद की ऐप चालू करके, या फिर वो मोस्ट इन डिमांड ऐप डेवलपर होगा टेक इंडस्ट्री में, मेजर कंपनीज के साथ काम करके काफ़ी पैसे बना चुका होगा. सो यही एक फंडा है दैट ये इंटरनेट का जो दशक है वेब 1.0 से 3.0 का, ये हमें ये सिखाता है दैट देयर आर नो स्किल्स दैट यू कैन लर्न दैट विल रिमेन विथ यू लाइफ लॉन्ग. दे आर चेंजिंग एवरी डिकेड. So if you can identify a trend and pick up on a skill set and master it, then by 2030 your career will be sorted. चाहे वो entrepreneur के तौर से हो, चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट के तौर से हो, चाहे वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट के तौर से हो. The way you have explained Web 1, 2 and Web 3.0 is awesome. मुझे इस पे जानना है कि जब हमने Web 1.0 देखा, करेक्ट, एंड आपने तीनों वेब को बहुत क्लोजली देखा है ना, इन तीनों डेकेड्स को बहुत क्लोजली देखा है. तो आई वांट टू नो कि जब वेब 1.0 चल रहा था तब देयर वाज वेरी लेस डिस्ट्रैक्शंस, अटेंशन स्पैन हाई था. वेब 2 में थोड़ा सा अटेंशन स्पैन और गिरा, डिस्ट्रैक्शन और बढ़े. वेब 3 में नाउ वी सी कि हम लोग सुबह उठते हैं तो फोन के साथ उठते हैं, सोते हैं तो फोन के साथ उठते हैं, अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है. बहुत कम. डू यू फील कि जैसे जैसे वेब 3 जब जेन AI आ रहा है, तो ह्यूमन की जो सोचने की कैपेसिटी या क्रिएटिविटी है वो डाउन हो रही है, अटेंशन स्पैन और कम होगा, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे? बिल्कुल यार, आई थिंक विद एवरी डिकेड ये एक मेजर ड्रॉबैक है टेक्नोलॉजी का. वो मुझे मीम याद आता है कि जब एप्पल ने विजन प्रो लॉन्च किया था, तो लोगों ने कहा कि पहले हम टीवी के सामने बैठना टैबू कंसिडर करते थे, अब हमने आंखों पे टीवी चढ़ा लिया है. तो वो उस तरह का हो गया है दैट विद इंक्रीजिंग यूज ऑफ हार्डवेयर इन टेक्नोलॉजी हमारे लाइफ्स इतने ज़्यादा स्क्रीन्स बढ़ गए हैं इन टर्म्स ऑफ AR VR गैजेट्स, मोबाइल फोन्स, आईपैड्स, लैपटॉप्स, दैट विथ स्क्रीन टाइम कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो गया है. आज पहले हम मूवीज़ जब देखने जाते थे 90s में, तो आप अगर बड़े पर्दे पे जिसे कहते थे हम देखते हैं, सिंगल स्क्रीन थिएटर्स, मल्टीप्लेक्स नहीं थे, और लोग बैठ के देख लेते थे इवन इफ द मूवी वॉज नॉट गुड. आज नेटफ्लिक्स के ज़माने में अगर लोग बैठते हैं, विद इन फ्यू सेकेंड्स आपको मूवी नहीं पसंद आया, आप उसे एग्जिट करके दूसरे पे आ जाते हो. तो ये कहीं ना कहीं हमारा अटेंशन स्पैन को अफेक्ट कर रहा है. एंड आई थिंक इट हैज़ बीन इंटेलिजेंटली डिवाइस्ड दैट वे. द फाउंडर्स ऑफ बिग टेक जिन्हें कहते हैं, दे ऑल हैड दिस ह्यूमन साइकोलॉजी एंगल इन माइंड कि वॉट पीपल क्रेव द मोस्ट इज सोशल वैलिडेशन. अगर हम एक मैकेनिज्म बनाएं जैसे लाइक्स हो गए, व्यूज़ हो गए, ये सारी चीज़ें ह्यूमन को एक तरह से एक सोशल वैलिडेशन देती है कि मेरा काम चल रहा है. ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजी में डीप सीटेड रिक्वायरमेंट भी है हमारी. तो इसी तरह से अटेंशन स्पैन अगर आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा ले पाए, तो आप उनको प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बेच सकते हैं. इंटरनेट का आज भी 75% से ज़्यादा रेवेन्यू एड मोनेटाइजेशन के थ्रू आता है. पूरा इंटरनेट, सभी बिजनेसेस दे रन ऑन एड रेवेन्यू, एंड एनी एडवर्टाइजर या एनी एडवर्टाइजिंग बजट ओनर, he needs people to see. So if you can create a
प्लेटफॉर्म और सर्विस जिस पे आप लोगों को हुक्ड ऑन रखें, लोग आपका व्यूइंग टाइम अगर उस पर सफिशिएंट दें तो ऑटोमेटिकली आपका एड रेवेन्यू बढ़ेगा। इसमें अवेयरनेस की ज़रूरत है, इसे लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। आज जब भी लोग फ्री बैठे रहते हैं, अपना मोबाइल चेक करते हैं, अगर कोई मैसेज नहीं है, कोई व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम अपडेट ज़रूरी नहीं है, कोई ईमेल ज़रूरी नहीं है, तो आप बंद करके व्हाट वी कॉल एज माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कीजिए। टेक सम फ्यू माइंडफुल मिनट्स आउट ऑफ एवरीडे लाइफ। वो लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाने की ज़रूरत है। आज लोगों के पास अगर कुछ नहीं है तो रील स्क्रॉल करने लग जाते हैं। सो ये एक ट्रेंड है एंड इट हैज़ बीन डिजाइंड दैट वे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट अ कंपनी कैन क्रिएट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस इज द एंड यूजर। जब भी प्रोडक्ट और सर्विस फ्री है, the consumer is no longer the consumer is the product. So Zuckerberg and the Google and Apples of the world, they have created this with a vision to dominate human life and experiences. But it is upon us. आज टिम कुक भी इतने बड़े, why I admire this particular thing from him is, इतने बड़े टेक कंपनी के CEO हैं वो, but he himself says that he does not use his iPhone in the early hours of the morning. He does not use his phone beyond a certain time. In fact, उनके nephew जो हैं वो उनके साथ रह रहे हैं अभी. And Tim Cook said that he does not have a social media handle. I don't think it is advisable for him to have a social media handle at this point, whereas he is in his college years right now. So I think people at that level with so much influence of tech are also making sure that उनके साथ रहने वाले बच्चे जो हैं वो अर्ली एक्सपोजर टू सोशल मीडिया एंड दीज थिंग्स ना हो उनकी ज़िंदगी में, सो दैट दे कैन फोकस ऑन द बेटर थिंग्स इन लाइफ, दे कैन एक्सपीरियंस लाइफ इन अ बेटर वे। सो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा अवेयरनेस है जो आज इंडियन मार्केट में नहीं है। ये हमेशा से मैं समझता हूँ बड़े बड़े लोगों ने भी ये कहा है दैट इंडिया जो मार्केट है वो हमेशा एक डंपिंग यार्ड रहा है फॉर ऑल द टेक दैट यूएस एंड वेस्टर्न कंट्रीज दे क्रिएट। पहले हम आईफोन्स की भी बात करें तो रिफर्बिश्ड फोन्स आते थे इंडिया में, तो ये एक तरह से डंपिंग ग्राउंड बन चुका था वर्ल्ड टेक का। सेम गोज फॉर ऑल द सॉफ्टवेयर्स, ऑल द गूगल्स, ऑल द मेजर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स दैट आर हैपनिंग इन द वेस्ट। इंडिया इज अ टेस्टिंग ग्राउंड, लोग आसानी से चला लेते हैं। सो डोंट लेट योर अटेंशन स्पैन बी सो चीप। यू for every minute you are spending on the internet, someone is making a few $1 million out of it. तो ये बात ध्यान रखिए, आपके समय की कीमत बहुत ज़्यादा है। The minutes and time you spend on the internet is valuable to someone else. So don't let someone else take control of your life. उस समय को सोचिए कि किस तरह से आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। लास्ट डे आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू इंदौर। बिल्कुल, वहाँ पे मैं इसी चीज़ों के बारे में पढ़ रहा था, हाउ दे हैव डिजाइंड दी सोशल मीडिया एप्लीकेशन। वहाँ पे कलर साइकोलॉजी का बहुत यूज़ किया हुआ है ना। आई गॉट टू नो अबाउट अ टर्म दैट कॉल्ड अटेंशन इंजीनियरिंग। सो विच मीन्स कि जितना ज़्यादा अटेंशन जिस पे होगा उसका प्राइस, उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। वहाँ पे कस्टमर ज़्यादा होंगे। One thing I want to ask about Tim Cook, what made Apple stand out? जब लास्ट टाइम हमने बात किया था, हमको पता, हम बात कर रहे थे कि Gen AI आया, Apple Intelligence सबसे लास्ट में आ रहा है, but still it will lead the market. What made the Apple stand out? सो आई थिंक इसमें दो स्ट्रैटेजीज है टिम कुक से, स्पेशली बिकॉज मैं उन्हें काफ़ी साल से जानता हूँ। पिछले साल हम एप्पल साकेत के इनॉग्रेशन में मैंने उनके साथ इनॉग्रेट किया था, तो आई गॉट टू मीट हिम क्लोजली दैट टाइम। सो व्हाट आई नोटिस्ड इज एज अ पर्सन, एज अ लीडर ऑफ दैट कैलिबर, वन, ही इज़ एक्सट्रीमली हम्बल एंड लेवल हेडेड। बिल्कुल भी उन पे ये बात उनके सर नहीं चढ़ी है कि मैं दुनिया के मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी का CEO हूँ। दिस इज़ नॉट ट्रू ऑफ एवरीवन एल्स। आज आप इलॉन मस्क देख लीजिए, जेफ बीजोस देख लीजिए, दे हैव अ वेरी हाई हैंडेड अप्रोच टुवर्ड्स थिंग्स। टिम कुक इज़ वन ऑफ द मोस्ट सॉफ्ट स्पोकन एंड सॉर्टेड पीपल। दूसरा, ही इज़ इनक्रेडिबली डिसिप्लिन्ड। आई थिंक वो भी एप्पल के रीज़न, सक्सेस का एक बड़ा रीज़न है। कंपनी का जब टॉप लीडरशिप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहता है। आज भी कहते हैं कि टिम कुक 3:45 AM सुबह उठते हैं रोज़, उसके बाद वो 1 घंटा मेल्स चेक करते हैं, उसके बाद 2 घंटे रोज़ वर्कआउट करते हैं वो, एंड आफ्टर दैट ही गेट्स रेडी एंड इज ऑफ टू एप्पल। इवन हिज वर्क कल्चर, वर्क एथिक्स टीचेस अ लॉट। उनका कोई फिक्स टाइम नहीं है कि मैं रोज़ 6 बजे या 7 बजे ऑफिस से चला जाऊँगा। ही स्टेज ऑन टू द कैंपस फॉर एज लॉन्ग एज इट इज़ रिक्वायर्ड, यानी कभी कभी 11-12 भी बज जाते हैं रात में। सो आई थिंक दैट लेवल ऑफ एथिक्स एंड कमिटमेंट एंड सेंस ऑफ ओनरशिप, ये सब
कमाल के स्किल्स हैं जो उन्होंने अपने लिए डेवलप करे हैं. आई Yes. थिंक वन ऑफ द रीजंस हाउ एप्पल डेवलप्ड इज, सो स्टीव जॉब्स जो थे, he was a great innovator, but all great innovators sometimes they border on eccentricity. यानी कहते हैं वो eccentric थे, eccentric genius जिसे कहते हैं. Yes. यानी एक पागलपन का एक एक्स्ट्रा ट्रेट उनमें रहता है. तो स्टीव जॉब्स जो है उन्होंने वर्टिकली एप्पल को स्केल अप किया, यानी उन्होंने बहुत वर्टिकल्स ऐड किए. आईफोन लेके आए, आईपॉड लेके आए, मैकबुक लेके आए, आईपैड लेके आए. ये सारे वर्टिकल स्टीव जॉब्स लेके आए हैं जो आज भी एप्पल के कोर प्रोडक्ट वर्टिकल्स है. Right. तो स्टीव जॉब्स वर्टिकली स्केल्ड अप द कंपनी. तो टिम कुक हॉरिजॉन्टली स्केल्ड इट अप. जब हम स्केल अप की बात करते हैं तो हमेशा स्केल अप का मतलब ऊपर जाना नहीं होता है, हॉरिजॉन्टल स्केल अप भी जरूरी था. Right. बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट्स बना देने मात्र से दुनिया भर के लोग उसे यूज नहीं करेंगे. टिम कुक, ही इज अ मैनेजमेंट ग्रेजुएट, ही इज एन MBA फ्रॉम ड्यूक यूनिवर्सिटी, सो ही यूज्ड हिज मैनेजरियल स्किल्स इन क्रिएटिंग अ ग्लोबल मार्केट फॉर एप्पल. उन्होंने सबसे बड़े दो चैलेंजेस को सॉल्व किया, वो है ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन. एप्पल अपने खुद के प्रोडक्ट्स डेवलप नहीं करता है, सब थर्ड पार्टी से डेवलप्ड हो रहा था, जैसे फॉक्सकॉन चाइना में, पेगाट्रॉन ताइवान में. सो इस तरह का उन्होंने एक ग्लोबल मार्केट डिज़ाइन किया. सप्लाई चेन को उन्होंने क्रैक कर दिया एप्पल के, एंड ही क्रिएटेड द वर्ल्ड्स मोस्ट इंटीग्रेटेड ग्लोबल ऑपरेशंस अराउंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट. तो ये कुछ एसेंशियल स्किल्स है जो टिम कुक ने पर्सनली दिए. ही हॉरिजॉन्टली स्केल्ड इट अप. टुडे एवरीवन इन द वर्ल्ड रिकॉग्नाइजेस एप्पल एज अ ब्रांड. तो इसके पीछे टिम कुक का बहुत बड़ा नेतृत्व था. दूसरा एक लीडर जो दे सकता है किसी कंपनी को, वो है स्टेबिलिटी. द स्टीव जॉब्स ईयर्स जो कहते हैं एप्पल के, दे वर वेरी डायनामिक एंड दे वर वेरी लॉट ऑफ अपहीवल हुआ, बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए. स्टीव जॉब्स को खुद की कंपनी से निकाल दिया गया, फिर वो जाते हैं पिक्सार एनिमेशन शुरू करते हैं जो फिर डिज्नी के साथ जुड़ गया. और फिर एप्पल जब बैंक्रप्सी के कगार पे था, स्टीव जॉब्स को फिर बुलाया गया कि अब आओ तुम ही बताओ हमें क्या करें. एंड देन स्टीव जॉब्स केम एंड लॉन्च्ड ऑल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मैक लाइनअप टू द आईफोन टू द आईपैड, आईपॉड लाइनअप, एवरीथिंग. सो आई थिंक स्टीव जॉब्स was very good in bringing technology, bringing that magic, but he did not know how to stabilize the company's operations. Okay. Tim Cook gave Apple the stability it needed at the right time. वो स्टीव जॉब्स के टाइम पे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे, but then very soon he became the CEO. And from 2009 to all the way till 24, इसी दौरान एप्पल फाइनेंशियली ग्रो किया. आज हम जब कहते हैं वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी, 1 ट्रिलियन से ज़्यादा उनका मार्केट कैप है, तो ये इसका श्रेय टिम कुक को जाता है. सो आई थिंक ही प्रोवाइडेड स्टेबिलिटी एंड ही प्रोवाइडेड ग्लोबल ऑपरेशंस विच वॉज नॉट till then cracked by Apple. So he created that value system for Apple. You have worked with APJ अब्दुल कलाम साहब, आपने मेंटरशिप लिया है उनसे, आपने उनके साथ काम किया, एडवाइसेस लिए. उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? How you reached out to him? I think with कलाम साहब से शुरू करूँगा. So one, he was a very he was a deep thinker. He had lot of visions for India. In particular वो चाहते थे इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बने. इनफैक्ट आज जो हम कहते हैं आज़ादी का अमृत काल, अमृत महोत्सव, 2030 2047 तक हमें डेवलप नेशन बनना है, ये सब कहीं ना कहीं ये डेवलप टैग जो है डॉक्टर कलाम ने ही इंडिया के साथ अटैच किया कि ये हमारा एस्पिरेशन होना चाहिए. सो आई थिंक डॉक्टर कलाम का सबसे बड़ा श्रेय जो है इंडियन पॉपुलेशन को, वो बड़े सपने देखने की ओर प्रेरित करने का था. एंड बड़े सपने भी विथ क्वांटिफाइबल बड़े सपने, जैसे कि वो अपने समय में उन्होंने देखा कि स्पेस वॉर्स हो रहे हैं दुनिया में, तभी वो इसरो के साथ जुड़े अर्ली ईयर्स में एंड बिकेम अ मास्टरमाइंड ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम. द सेम हैपेंड विथ मिसाइल्स एंड न्यूक्लियर वॉर्स, न्यूक्लियर आर्म्स रेस जिसे हम कहते हैं विथ USA एंड USSR. Dr. Kalam was at the center of that activity. Dr. Homi Bhabha wanted India to become a nuclear power back in the 60s. He was very close to cracking the atomic bomb code. But he saw that Homi Bhabha passed away probably in a sabotage attempt when he was flying to Geneva. तो इस तरह की कुछ चीज़ें हुई जिसने उन पे बहुत बड़ा इम्प्रेशन दिया. एंड एक गौर करने वाली बात यह है, ही वॉज इन्वॉल्व इन 2 ऑफ द इंडस्ट्रीज जो वर्ल्ड में डेवलपमेंट को डिफाइन करती हैं, एक स्पेस इंडस्ट्री और एक मिसाइल इंडस्ट्री. आगे चल के उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा गया बिकॉज ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस. तो इन दोनों के अराउंड उन्होंने यही देखा दैट इसी के दम पे विश्व के देश अपने आप को डेवलप्ड कह रहे हैं. बट ही सेड दैट दे आर डेवलप्ड विदाउट कैरेक्टर.
कैरेक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एज अ कंट्री, नॉट जस्ट एज द पीपल. सो ये जो हमारा वैल्यू सिस्टम है अबाउट ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, राइटियसनेस, ये सब वो लेकर आए इंडियन पॉपुलेशन के लिए कि हमें हमारा जो सुपर पावर का नरेटिव है वो मात्र डेवलप्ड हम इकोनॉमी के टर्म्स में नहीं दे सकते, हमें ऐसा कंट्री देना है, ऐसा वैल्यू सिस्टम देना है. तो हमारी जो एक इंडियननेस थी, हमारा जो एक रियल एसेंस था ऑफ अ कंट्री, वो डॉक्टर कलाम कहीं ना कहीं हमारे नरेटिव में लेके आना चाहते थे. एंड कई हद तक वो कामयाब भी रहे इसमें. Working with Dr. Kalam was again a very special moment in my life. One, he was very approachable. आज की तारीख में आप अगर किसी नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल के थ्रू किसी मंत्री से मिलने की कोशिश करें तो इट इज़ वेरी टफ. कहते हैं कि दिल्ली में मंत्री से पहले आपको उसके संतरी से बात करनी पड़ती है सो दैट यू कैन गेट एन अपॉइंटमेंट विद द मंत्री. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रीच पीपल एट दैट लेवल. डॉक्टर कलाम वॉज वेरी अप्रोचेबल. हमारी कॉन्वर्सेशन ईमेल पे ही शुरू हुई. उन्होंने एक किसी आर्टिकल को न्यूज़पेपर में पढ़ के मुझे थैंक यू नोट लिखा था उसे टैग करते हुए और मेल किया था. उसके बाद हमारी कॉन्वर्सेशन शुरू हुई. आर.के. प्रसाद नाम के उनके सेक्रेटरी थे जो राष्ट्रपति भवन के ज़माने से उनके साथ जुड़े थे. तो उन्होंने मुझे मेल किया, फिर मैंने उसे रिप्लाई किया. इस तरह से हमारा मेल कम्युनिकेशन चालू हुआ. एंड देन उन्होंने भी लिखा दैट यू कैन विजिट मी इन दिल्ली. तो वो 10 राजाजी मार्ग में रहते थे जिसको लेटर ऑन फॉर्मर प्रेसिडेंट्स रेसिडेंस कहा जाने लगा. तो मेरी जितनी मुलाकात हुई वहीं पर हुई उनके साथ. एंड दे वर वंडरफुल इन शेपिंग मी एज अ पर्सन, इन शेपिंग माई आउटलुक टूवर्ड्स द वर्ल्ड. बिकॉज कहीं ना कहीं हम सिर्फ डेवलप्ड जो होना चाहते हैं वो ज़रूरी नहीं है. उसके साथ साथ देयर शुड बी अ पर्पस. वी शुड सॉल्व अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फॉर ह्यूमैनिटी एज अ होल. सो इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स थे अर्ली ईयर्स में मेरे लाइफ में जो मुझे मिले. आई थिंक लास्ट हमारा जो मुलाकात था वो मई के महीने में था 2015 में. 2 महीने पहले उनके देहांत के. सो वो मेरे लिए काफ़ी मेमोरेबल रहेगा. मैं आपके साथ वो तस्वीर भी साझा करूँगा उस मीटिंग की. एंड आई थिंक बहुत ही अच्छा पल था. कलाम साहब के बारे में एक बात और करना चाहूँगा. कलाम साहब ने एक सपना दिखाया था विजन 2020 का. हाँ. कि 2020 तक इंडिया एक डेवलप्ड नेशन बन जाएगा. व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस? कितना किस हद तक इंडिया उसको अचीव कर पाया है? ऑफ कोर्स विजन 2020 वाज अ वेरी एस्पिरेशनल थिंग. 2020 के अराउंड तो फिर कोविड आ गया एंड लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड द वर्ल्ड वर नॉट स्टेबल इनफ. इंडिया वाज ऑन दैट ट्रैजेक्टरी. ऑफ कोर्स 2020 वाज एन एस्पिरेशनल टारगेट. But right now we do have targets around 2030, around 2047. 2047 इसीलिए हम विकसित भारत 2047 कह रहे हैं. But 2047 a large part of our developmental challenges will be solved. So इसमें infrastructure भी आ रहा है. नितिन गडकरी साहब is doing a phenomenal work around creating a infrastructure for India. So major developed nations में मैंने यही देखा है. Economy, power of the currency, value of the passport एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. ये 4 पहलू हैं जिसके बेसिस पे कोई भी देश डेवलप्ड कहलाता है. वन ऑफ द मेजर डिप्लोमेसी वाइज चैलेंजेस जो वी आर ट्राइंग टू सॉल्व वो ये भी है इंडिया का पासपोर्ट इंडेक्स में स्थान कैसे ऊपर जाए. क्योंकि एक डेवलप्ड नेशन की यही पहचान होती है कि उसके नागरिक दुनिया के किसी भी देश में बिना वीज़ा के उठ के किसी भी दिन जा सके. सिंगापुर फॉर इंस्टेंस एक इसी तरह का एग्जाम्पल है. वर्ल्ड पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप में आता है. तो सिंगापुर के नागरिक को अगर यूएस घूमने जाना है वो आज रात की फ़्लाइट पकड़ के जा सकता है. उसे टूरिस्ट वीज़ा की आवश्यकता नहीं है. जबकि इंडिया में आज B1 B2 वीज़ा का 330 डेज एवरेज वेट टाइम है. 1 साल का वेटिंग टाइम है. तो ये सारी सुविधाएं हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, पासपोर्ट इंडेक्स, करेंसी की वैल्यू. अगर हम इन्हें सॉल्व कर पाएँ इन इस डायरेक्शन में काफ़ी प्रोग्रेस है. आई थिंक वी हैव डन फिनोमिनल वर्क बट द वर्क स्टिल कंटिन्यूज एंड आई थिंक बाय 2030 वी शैल बी हाफ वे देयर एंड बाय 2047 आई थिंक वी वुड हैव अकम्प्लिश्ड दैट. एंड व्हाट डू यू थिंक कि इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बनाने के लिए क्या क्या इश्यूज हैं जिस पे एज अ नेशन हमको काम करने की ज़रूरत है? एज अ नेशन है तो बहुत सारे इश्यूज. टॉप इश्यूज ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ ट्रेड रिलेशंस, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी देयर इज अ लॉट दैट नीड्स टू बी डन. जब हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इस तरह के शब्द यूज़ करते हैं इट हार्डली मीन्स एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ इंटरनल ग्रोथ स्ट्रक्चर. सो इंटरनल ग्रोथ, परचेसिंग पावर पैरिटी एक चीज़ है इकोनॉमिक्स की, उसे हमें सॉल्व करना है. किसी भी डेवलप्ड नेशन का एक मेजर इशू ये रहता है दैट उसकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू
both in the international market as well as in the domestic market. Domestic market में $1 या एक सिंगल यूनिट आपको क्या वस्तु दिलाता है वो परचेसिंग पावर के टर्म्स में कहलाता है. एंड इंटरनेशनल मार्केट में आपका करेंसी कितना वैल्यूड है ग्लोबली, आपके करेंसी का क्या एक्सचेंज रेट है, ये एक मेजर इशू है जो हमें सॉल्व करना है. आज हम देख रहे हैं कि US डॉलर जो करीब एक ज़माने में 50 का हुआ करता था आज 80 के करीब पहुंच चुका है. पाउंड अगर आप देखें तो 100, यूरो जब हम देखें तो 95 to 100. तो ये ऐसी करेंसीज हैं जो आज डिफरेंस बहुत आ गया है. तो हमें इस गैप को कम करते जाना है. वन मेजर चैलेंज फॉर अ डेवलप्ड नेशन इज वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी. सेकंड, पासपोर्ट इंडेक्स में उसका स्थान. पासपोर्ट अगेन हैज़ टू बी स्ट्रांग. अगर पासपोर्ट स्ट्रांग होता है दैट मीन्स द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट ऑफ पीपल. अगर ये आसान हो जाए तो इंडिया के लोग फॉरेन कंट्रीज जाके इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया के लिए कितना कुछ कर सकते हैं. ईजीली लोग जा सकते हैं, ईजीली लोग वापस आ सकते हैं. मूवमेंट ऑफ रिसोर्सेज बहुत आसान हो जाएंगे. सिंपल भाषा में कहे तो US एंड सिंगापुर के ये एक मेजर बेनिफिट है. अ US सिटीजन, देयर पासपोर्ट इज वैल्यूड, देयर करेंसी इज वैल्यूड. ये कुछ चीज़ें हैं. ग्रीन कार्ड बहुत वैल्यू मैटर करता है. आज इंडिया का एक सिटीजनशिप कार्ड या आधार कार्ड की उतनी वैल्यू नहीं है. तो द रेसिडेंसी कार्ड, द पासपोर्ट वैल्यू, the economic structure, these are some of the major areas. Apart from them, industry, innovation and infrastructure. Infrastructure, जब हम highways, roadways की बात करें, again Gadkari साहब has done a phenomenal job, but there still remains a large part of the country that needs to be connected. So उसके around एक favorable ecosystem develop करना, industry के around एक favorable ecosystem develop करना, and innovation को हमें और बढ़ावा देना. ये कुछ अहम पहलू है करेंसी, पासपोर्ट, इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अराउंड हमें काम करने की ज़रूरत है. आई थिंक इनमें से अगर हमने 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स को टारगेट कर लिया तो देन बाय 2030 इंडिया विल ऑलमोस्ट बी अ डेवलप्ड नेशन इन टर्म्स ऑफ being called in the top 5, top 10 nations of the world. As a peaceful and credible nation, हमारी already बहुत value है, both in the subcontinent and globally. Everyone knows that India is very clear on its strategy around dealing with unwanted elements, terrorism and all that. We are a very peaceful nation. We are very credible in terms of even monetary grants to India को मिलते हैं. India के repayments काफ़ी समय पर हैं compared to a large number of countries globally. So India is doing well. However, we yet have to clarify what is our agenda and we need to start working in that direction. As you know, हमारा एक और चैनल है इंडियन एस्पिरेंट शो, जहाँ पे हम UPSC या MPPC PCS जो सर्विसेज होती है उनके ऑफिसर्स के साथ में या टॉपर्स के सामने पॉडकास्ट करते हैं. वन थिंग, एक रिसेंट इशू इंडिया के अंदर हमने देखा कि IAS पूजा खेड़कर है जिन्होंने सिस्टम के लूप होल्स का फायदा उठा के शी गॉट द जॉब. ठीक है, उन्होंने रिजर्वेशन लिया एंड दैट वाज इलीगल. इंडिया के अंदर भी रिजर्वेशन एक इशू है. जस्ट हमने जैसे बांग्लादेश के रिजर्वेशन इशू को एड्रेस किया या उस पर देखा. क्या आपको लगता है, लाइक फर्स्ट रिजर्वेशन को लेकर आपका ओपिनियन क्या है, एंड डू यू स्टिल फील कि इंडिया में रिजर्वेशन होना चाहिए? आई थिंक माय ओरिजिनल इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजर्वेशन वाज दैट, जो मैंने कई ऐसे लोगों को भी देखा है काम पर एंड अराउंड दिल्ली, आई थिंक अगर उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिलता तो शायद वो उस सीट पर नहीं आ पाते जहाँ पे वो आए हैं. वो रिजर्वेशन इन रियलिटी अगर हम बात करें तो द SC कम्युनिटी, द OBC कम्युनिटी कि कुछ लोग हैं जो वाकई में डिजर्विंग थे, जिन्हें वो रिसोर्सेस नहीं मिले थे बचपन में, जो बहुत ही पॉवर्टी लाइन के नीचे से आए हैं, बट उनमें टैलेंट था, उनमें नॉलेज था, उन्होंने मेहनत करी, पर बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक डिफरेंस दे वर अनेबल टू टेक दैट लीप. तो रिजर्वेशन डज हेल्प. मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पूरी तरह से रिजर्वेशन के अगेंस्ट हूँ, बिकॉज मैंने कुछ ऐसे रियल सक्सेस स्टोरीज देखे हैं. 12th फेल जिन पे बनी है IPS मनोज सर, वो खुद इस तरह के एक एग्जाम्पल हैं. ही रियली कम्स फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे आई थिंक विदाउट दैट एक्स्ट्रा पुश ही वुड हैव नॉट मेड इट. बट एट द सेम टाइम इन द करंट कंटेक्स्ट आई थिंक रिजर्वेशन इज नो लॉन्गर वैलिड, बिकॉज कहीं ना कहीं जैसे कि पूजा खेड़कर के केस में मेरिट टेक्स अ बैक सीट. आज की तारीख में लोग जो है they are using all of these loopholes around the reservation system to exploit it. And I think वो exploit करना जो है that won't stop until we reduce the amount of reservations given. So reservation में ये नहीं कह रहा immediately उसे निकाल लेना चाहिए.
but we need to reduce the number of reservations. रिसेंटली आई सो लाइक 2-3 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट सेड कि यार नाउ SC and ST will have a creamy layer हाँ. based upon the economic condition of the family. Now the question is कि जब when I was speaking to a UPSC officer, Right. तब हम बात कर रहे थे कि यार SC ST को कभी इकोनॉमिक वैल्यू पे या इकोनॉमिक सिचुएशन पे रिजर्वेशन नहीं दिया गया. इट हैज़ गिवन ऑन द सोशल वैलिडेशन और सोशल सिचुएशन कि सोसाइटी ने जो उनके साथ पास्ट कुछ ईयर्स में किया या पास्ट पहले हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी गिव द रिजर्वेशन. डू यू फील कि क्रीमी लेयर में SC और ST को लेकर आना will give the social validation to the community? I think to a great extent, yes, but I still feel this is the era of exploitation. आज जैसे एक वर्ड यूज होता है हसल, सो लोग कहीं ना कहीं लूप होल्स आइडेंटिफाई करके उन्हें एक्सप्लॉइट करने में लगे हैं. ये मैं हर इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ. ये दिस इज वैलिड फॉर गवर्नमेंट, वैलिड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, वैलिड फॉर फंड रेजिंग, वैलिड फॉर इंडस्ट्रीज. People are on the lookout for making things happen easily. Yes. And ये एक बैड ट्रेट है जो इंटरनेट के कारण एक इन्फ्लुएंस आया है सोसाइटी पे. ठीक है. आई थिंक ST/SC को क्रीमी लेयर में इंक्लूड करना विल गिव देम अ सेंस ऑफ वैलिडेशन, बट विल ऑल्सो क्रिएट अ लार्ज पूल ऑफ एक्सप्लॉयटेटर्स. तो ये आई थिंक रिजर्वेशन के व्हाट द पूजा खेड़कर के स्टॉटस इज, रिजर्वेशन के इतने सारे उन्होंने तरीके इस्तेमाल किए हैं, फ्रॉम फिजिकल डिसेबिलिटी to all sorts of things, from mental disability, locomotor disability, OBC, दलित वर्ग, क्रीमी लेयर. तो यानी इतने सारे चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं रिजर्वेशन क्राइटेरिया में. आई थिंक उन पे एक टाइटर स्क्रूटिनी और थोड़ा फिल्ट्रेशन ज़रूरी है. जो ट्रूली डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं वही उभर कर सामने आना चाहिए. अगर इसका कोई भी दुरुपयोग कर रहा है तो आई थिंक the problem does not lie with reservation. The problem lies with malpractice, misuse, and more than that, lack of scrutiny. कहीं ना कहीं हम ये समझते हैं that even topmost institutions जो हैं जैसे कि UPSC, कहीं ना कहीं उन्होंने ढील बरती इस मामले में. फर्स्ट लेवल पर ही स्क्रूटिनी इतनी टफ हो जाए कि बियॉन्ड दैट नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट आगे बढ़ ही ना पाए. सो आई एम नॉट अगेंस्ट रिजर्वेशन. कुछ जेन्युइन लोगों का मैंने भला होते देखा है. But having come from an unreserved category, general category myself, I know the struggle the general category also has to make. But they have the resources to do that. And they have a plan B if something does not work, Yes. which a lot of other deserving people don't have. तो मैं उनका हक छीनने के बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ. It's just that exploitation रोकने के लिए we need stricter measures, better scrutiny, and कहीं ना कहीं the several categories of reservations need to be filtered down to a few so that we have lesser options for any such malpractice to happen. इंडिया के जितने भी यूथ्स अभी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनके लिए आपका फाइनल लास्ट पीस ऑफ एडवाइस क्या होगा? One of the last message जो मैं इस पॉडकास्ट को देखने वालों को देना चाहता हूँ वो यही है that अभी इंडिया ऐसे समय में है जब हम कहते हैं कि दुनिया भर के जैसे हमारे कंट्रीज़ के साथ हमारे सपने थे. कनाडा और US बहुत लोग माइग्रेट करना चाहते थे. पंजाब, गुजरात, ये कोई ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ से लोग द ग्रेट इंडियन अमेरिकन ड्रीम कि US जाए, वहाँ पे जॉब करें, फिर एक घर लें, एक सिटीजनशिप या ग्रीन कार्ड PR मिले, फिर हमें इवेंचुअली हमें सिटीज़न बनाया जाए. सेम गोज़ विद कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK. ये सब एस्पिरेशनल कंट्रीज़ थी इंडिया के लिए. बट ये जो दशक है ये इंडियन ड्रीम का एरा है. अब हम ये नहीं कहते कि ये देशों का में जाकर ही हमारा ज़िंदगी उज्जवल हो सकती है. भारत में रहकर भी हम दुनिया के वर्ल्ड लीडिंग टेक्नोलॉजीज़ पे काम करके अपने लिए बहुत अच्छी ज़िंदगी बना सकते हैं. सो आई थिंक Web 3.0 इज़ अ डिकेड ऑफ इंडिया. दिस इज़ द डिकेड ऑफ द इंडियन ड्रीम एंड आई थिंक वी मस्ट वर्क ऑन दैट. बिकॉज आज इंडिया ऐसे समय में है आपको वो सारी चीज़ें जो एक मेजर वर्ल्ड पावर दे सकता है उससे 10 गुना बेटर मार्केट, 10 गुना ज़्यादा फॉलोअर्स, इंडियन ऑडियंस आज भी लोगों की सक्सेस स्टोरी के साथ कनेक्ट करती है. ये US में नहीं है, ये कनाडा में नहीं है. देयर इज़ ए रीज़न वाई इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स इंडियन ओरिजिन के इतने ज़्यादा हैं और ग्लोबल लेवल पर भी इतने इंडियन इन्फ्लुएंसर्स अच्छा काम कर रहे हैं. बिकॉज इंडियन ऑडियंस इज़ वेरी इनोसेंट एंड नेव. वो कनेक्ट करती है लोगों की स्ट्रगल के साथ, वो कनेक्ट करती है लोगों की सक्सेस के साथ.
या आपने भी देखा होगा आपके व्यूज़ Yes. में, चैनल्स में। तो इंडिया वो समय है जब वो सारी चीज़ें, नेम, फेम, मनी, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, जो इंडिया में रह के मिल सकता है, आई डोंट थिंक एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड राइट नाउ हैज़ द पोटेंशियल दैट इंडिया हैज़। सो एनीवन हु इज़ इन देयर स्टूडेंट ईयर्स और अर्ली प्रोफेशनल ईयर्स, इंडिया के आप इस ग्रोथ स्टोरी का नैरेटिव का हिस्सा बन सकते हैं। अगले आने वाले 7-10 सालों में आपकी ज़िंदगी बहुत बढ़िया हो जाएगी। आपके पर्सनल ग्रोथ एज वेल एज कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, यह आपका बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाएगा। Thank you so much, Bia, for joining us. Thank on you our so session much, tracking. Ashish. I had a great time and looking forward to it. Yeah, and I'm looking forward to have more conversation in the future. Absolutely, 100%. Yeah, thank you so much for Thanks, joining us. thanks a lot. Thank you.